Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today topic is about data handling. The first step is data handling. After this discussion, after looking at data, then we will put data in econometric equation. So why we need to look at our data? The main objective is to identify, is there any abnormal behavior in our data? Uh, is our data is normally distributed or not normally distributed? So we have multiple techniques that we can use to foresee our data. The first technique is graphical analysis, the second technique is descriptive statistics, the third one is transformation of data. In the previous video I used this data and I made a graph of this data in eview 9. I converted this series into log form. I converted this series into new series, into return series. So now I will explain the second techniques that we can use to foresee our data. That technique is descriptive statistics. Descriptive statistics tell us about four things: measure of central tendency, measure of dispersion, measure of location, and normality of data. Measure of central tendency tell us about what is the average of our data. Measure of dispersion showed what is the spread in our data, what is the maximum value, what is the minimum value, what is the standard deviation of our data. Measure of location tell us about two things: skewness and curtices. In curtices, they tell us about is our data flat or is our data peaked. So and skewness is our data is positively skewed or negatively skewed. And the last thing, normality of data, is our data normally distributed or not normally distributed. So now I will make a graph of histogram that will be covered all of these aspects related to descriptive statistics. So simply हम पहले देख लेते हैं कि how we make a graph in eview, how we convert this series into log form, how we convert this series into return series. Then simply I copied this series and paste this series in eview. I copied this series and when I click eview and I paste this series. Next, finish. And so now you can see the series I copied from Excel, and this series showed in eview 9, that one KSC. When I click KSC तो ये मेरे पास वो series सामने आ गई है. तो firstly I will make a graph of this series. When we in eview 9 we use the word plot for making a graph. The simple, when I click a command and write plot, and plot के साथ हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं. प्लॉट के साथ हमारा वेरिएबल क्या है? KSC है. KSC के डेटा को हम अब ग्राफ में देखने के लिए हम प्लॉट के साथ KSC लिखेंगे एंड इंटर कर दिए तो ये मेरे पास KSC का ग्राफ शो हो गया. अब मैं इसी ग्राफ को कन्वर्ट करता हूँ लॉग की सीरीज में. हम अपने डेटा को कन्वर्ट करते हैं लॉग की फॉर्म में. तो सिंपली वही कमांड पे गए, प्लॉट लॉग, एंड वेरिएबल को हमने लिख दिया ब्रैकेट्स में एंड मैंने इंटर कर दिया. तो ये मेरे पास अब लॉग की सीरीज आ गई. अब मैं इसी सीरीज को, अब हम KSC सीरीज को कन्वर्ट करते हैं रिटर्न की सीरीज में. हम एक न्यू सीरीज को जनरेट करते हैं एंड व्हेन we generate a new series then we use the word of GENR. एंड मैं अपने नए जो सीरीज है उसका नाम रिटर्न रखना चाहता हूं तो मैं रिटर्न इक्वल टू, एंड अब सीरीज कन्वर्ट किस तरह होती है, एक सीरीज को मैं कैसे रिटर्न में कन्वर्ट करूंगा? सिंपली KSC वेरिएबल, मैं कौन सी सीरीज को कन्वर्ट कर रहा हूं? मैं लॉग की सीरीज को कन्वर्ट कर रहा हूं. तो सिंपली लॉग ब्रैकेट KSC डिवाइडेड बाय KSC -1. ये जो -1 है इसका
इससे क्या मुराद है, ये प्रीवियस वैल्यू को डिनोट कर रहा है। सिंपली के एस सी की वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू करेंगे तो हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी रिटर्न की फॉर्म में। एंड मैं इंटर करूंगा तो ये मेरे पास अब सीरीज रिटर्न की फॉर्म में बन गई। पहले हमारे पास सिर्फ एक सीरीज थी के एस सी की, अब मेरे पास एक और सीरीज हमने जनरेट की रिटर्न की फॉर्म में ये। तो अब हम इसको इसका इस रिटर्न की सीरीज के ग्राफ बनाएंगे। तो सिंपली ग्राफ बनाने के लिए हम प्लॉट का लफ्ज यूज करते हैं, प्लॉट एंड साथ वेरिएबल का नाम, प्लॉट एंड रिटर्न। तो ये मेरे पास अब रिटर्न की सीरीज बन गई। सो नाउ I will make a graph of I will make a histogram graph that will cover all the aspects of descriptive statistics. So simply we just click quick series statistics and histogram and statistics. तो ये अब मुझे कह रहे हैं सीरीज का नेम बताएं आप। तो मैं किस सीरीज को का हिस्टोग्राम बना रहा हूँ, मैं रिटर्न का बना रहा हूँ, रिटर्न एंड ओके। तो ये मेरे पास अब रिटर्न का ग्राफ बन गया। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टेल अस अबाउट फोर थिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज क्या है, मीन मीडियन मोड के थ्रू हमें पता चल जाती है। तो ये मीन मीडियन का मेरे पास आंसर आ गया। मेजर ऑफ लोकेशन, स्क्यूनेस कर्टिसिस का बताता था, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, और कर्टिसिस फ्लैट है या पीक्ड है। तो ये मेरे पास उनके आंसर आ गए। हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो वो हम जॉर्क बेरा एंड प्रोबेबिलिटी के थ्रू देख सकते हैं। एंड हमारे डेटा में स्प्रेड कितना है वो मैक्सिमम मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन से देख सकते हैं। तो हिस्टोग्राम कवर कर लेते हैं ऑल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को के एस्पेक्ट्स को। जो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है वो अगर हम हिस्टोग्राम का ग्राफ बना लें तो वो सब कवर हो जाते हैं। तो सिंपली मीन हमारे पास क्या है, -0.000910। अगर मैं इसको परसेंटेज में कहूँ तो 0.091%। वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू? दिस मीन हमारे हमारे इस टाइम पीरियड में 0.091% ऑन एवरेज रिटर्न में लॉस हुआ है 0.091% का। सिंपली मीन हमें बताता है एवरेज रिटर्न ऑफ द स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज 0.091% पर डे। जो एवरेज रिटर्न में हमें लॉस हुआ है वो 0.91% पर डे के हिसाब से हुआ है, हर रोज हुआ है। एवरेज लॉस हमें इतना हर रोज हुआ है। मीडियन मीडियन हमें मिडल वैल्यू का बताती है। हमारा ये डेटा कितनी, हमारे डेटा सैंपल साइज कितना था, हमारे ये डेटा की टाइम पीरियड कितना था, 133 डेज का था। तो 66 डेज ऐसे थे जिनमें .048% हमारा 66 डेज ऐसे थे जिनमें रिटर्न हमारा 0.048% से ज़्यादा था, एंड 66 डेज ऐसे थे जिनमें रिटर्न 0.048 से कम था। मैक्सिमम हमारा इस टाइम फ्रेम में वैल्यू गई है 4.6%, एंड मिनिमम हमें जो लॉस हुआ है वो नेगेटिव में है, तो हमें लॉस हुआ है 7.1% का। हमें इस टाइम फ्रेम में एक दिन ऐसा भी था जिसमें 7.1% का लॉस हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन, द एवरेज रिस्क ऑफ द मार्केट इज, अगर 0.018 का को परसेंटेज में बोलें तो 1.89%। तो एवरेज रिस्क ऑफ द मार्केट इज 1.89% पर डे है। एंड स्क्यूनेस नेगेटिव है, नेगेटिव में आंसर है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। कर्टिसिस 6.11 आंसर है। तो सिंपली अब स्क्यूनेस को हम, एक तो आंसर से पता चल गया नेगेटिवली स्क्यूड है। दूसरा, इफ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन तो पॉजिटिवली स्क्यूड, अगर मीन इज लेस देन मीडियन तो नेगेटिवली स्क्यूड। हम मीन एंड मीडियन को भी देख के हम बता सकते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। और ग्राफ को देख के भी अगर डेटा मोर इन राइट साइड है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर मोर इन लेफ्ट साइड है तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। तो ये जीरो से लेफ्ट साइड में डेटा ज़्यादा है या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ज़्यादा है तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। स्क्यूनेस को हम तीन तरह देख सकते हैं। कर्टिसिस का आंसर, इफ कर्टिसिस आंसर is greater than 3 तो हमारा डेटा, so then our data is peaked. If Curtis's answer is less than 3 तो हमारा डेटा
फ्लैट है। जॉर्क बेरा का आंसर जीरो हो तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर जीरो नहीं है तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हम जॉर्क बेरा के साथ प्रोबेबिलिटी को भी देखते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी 0.05 से हायर है तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर 0.05 से लेस है प्रोबेबिलिटी तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा की वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो अब इसकी एक सिंपल समरी क्या है कि एवरेज रिटर्न ऑफ द स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग 2020 इज 0.091% पर डे। There are 66 days where market are more than 0.48%, where market return are more than 0.048% per day, and in the remaining day the return are less than 0.48%. The maximum return on the in one day on the maximum return in the day is 4.68%, and minimum loss in a day is 7.1%. मैक्सिमम रिटर्न हमारा इस टाइम सीरीज में 4.6% रहा है, एंड मिनिमम जो हमें लॉस हुआ है इस टाइम सीरीज में एक दिन में ऐसा भी था कि 7.1 का लॉस हुआ है। अब ये स्टॉक मार्केट का डेटा है, तो स्टॉक मार्केट का अपर लॉक एंड लोअर लॉक का हमें पता होना चाहिए। पाकिस्तान में अपर लॉक एंड लोअर लॉक 7.5 पे है। फॉर एग्जांपल अगर एक शेयर की प्राइस 100 है तो वो 107.5 से इंक्रीज नहीं कर सकता एक दिन में उसका शेयर, और इसी तरह 93.5 से उसके शेयर की प्राइस डिक्रीज नहीं हो सकती। तो अब मैक्सिमम और मिनिमम तो हमारा जो है वो ना मैक्सिमम रिटर्न 0.75 से ज़्यादा हो सकता है, और ना हमें मिनिमम जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 0.7 से कम हो सकता है। And standard deviation, the average risk of the market is 1.89% per day, and the result of skewness is negative, so it means our data is negatively skewed, and the Curtis's answer indicate our data is peaked because answer is greater than 3, and York Bear and so we can conclude so we can conclude that data is not normally distributed, which is confirmed by George Bera, because George Bera का आंसर जीरो नहीं है, जॉर्ज बेरा का आंसर इंक्रीज है। प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम है, अगर प्रोबेबिलिटी 0.05 से कम हो तो हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अगर प्रोबेबिलिटी 0.05 से ज़्यादा हो तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसी तरह अब हम जो दूसरी के की सीरीज थी उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। के सिंपल एंड ओके। तो अब हमें क्या पता चल, मीन का आंसर मीडियन से ज्यादा है तो हम मीन और मीडियन को देख के बता देते हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। एंड स्क्यूनेस का आंसर भी पॉजिटिव में है, अगर स्क्यूनेस का आंसर पॉजिटिव में हो तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होते हैं, नेगेटिव में हो तो नेगेटिवली स्क्यूड है। कर्टिसिस का आंसर लेस देन 3 है, तो हमें क्या पता चल गया है कि हमारा जो है डेटा फ्लैट है। जॉर्ज बेरा का आंसर 5.78 है, मगर प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी 0.05 है, 0.05 से ज़्यादा है। जब प्रोबेबिलिटी 0.05 से ज़्यादा हो तो हमें क्या पता चल जाता है कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। स्क्यूनेस का आंसर देख के हमें पता चल गया हमारा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है। कर्टिसिस के आंसर से पता चल गया हमारा डेटा फ्लैट है। एंड जॉर्ज बेरा एंड प्रोबेबिलिटी को देख के हमें पता चल गया जो के का डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एंड रिटर्न का डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं था। एंड इस टाइम सीरीज के दौरान मैक्सिमम हमारे पास 43,218 की भी वैल्यू एक दिन में आई है, इंडेक्स की वैल्यू रही है, एंड मिनिमम जो वैल्यू 27,228 भी इंडेक्स की वैल्यू रही है। इसी तरह मीन एवरेज हमारे पास 36 था इंडेक्स की ये वैल्यू रही है, एंड 66 डेज ऐसे थे जिनमें वैल्यू 34,679 से ज़्यादा थी, एंड रिमेनिंग में इससे कम थी। तो हम
सिंपल एक हिस्टोग्राम बना के हम देख सकते हैं कि हमारा डेटा फ्लैट है, पीक्ड है, हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मैक्सिमम वैल्यू क्या रही है, हमारे डेटा में मिनिमम क्या रही है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हिस्टोग्राम में हम कवर कर सकते हैं। एंड अल्लाह हाफिज़।